सो ठीक है, ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसीज हमने करना है आज की क्लास में। कुछ हम वी विल ट्राई टू कवर द टॉपिक्स क्विकली। बहुत बेहतर होगा अगर आप लोग वॉलंटियर करते रहो। आप लोगों की प्रैक्टिस है, एक रिवीजन हो जाएगी पूरी, कोई साथ क्वेरीज हुई वो मिलके हम सॉल्व कर लेंगे। सो टू बिगिन विद कोई टॉपिक, और खुद ही आप बेशक वॉलंटियर भी कर दो और फिर हम उसको क्विकली डिस्कस कर लेंगे, 10-10 मिनट, 5-5 मिनट हर टॉपिक को देख के। जी, किसी ने वॉलंटियर करना है? वी कैन स्टार्ट विद अ कंपैरेटिवली इजियर टॉपिक और सो। ओके, हमारा ने हैंड रेज किया जी, हमारा। जी मैडम, मैं वॉलेंटियर करना चाहती हूँ। जो भी टॉपिक आप ठीक है, तो आप बता दो अगर आपने अपना कोई टॉपिक करना है, वी कैन स्टार्ट विद दैट। मैडम, मैटरनल कोलैप्स जो है ना, उसमें काफी क्वेरीज आती हैं, तो वो मैं करती हूँ, तो फिर जितनी भी आप मिस्टेक्स बिल्कुल, होंगी वो फिर कर दीजिए। बिल्कुल जबरदस्त। सो यस, मैटरनल कोलैप्स से ही हम शुरू कर लेते हैं। जी, हमारा आप शुरू करो। सो अगर सिनेरियो की बात है तो ऑब्वियसली यू गेट अ पेशेंट हु इज कोलैप्स। आप मेरा ख्याल है पूरा सिनेरियो बोल दो, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट सिनेरियोज होंगे। कुछ हेमरेज की वजह से हो सकता है, कुछ किसी भी वजह से। आप बता दो, आप स्टार्ट करो। अगर आपको पेशेंट मिल गई है विद मैटरनल कोलैप्स के साथ, एंड शी इज ऑफ कोर्स, कितने वीक्स प्रेग्नेंट करें उसको? 26 वीक्स प्रेग्नेंट है। So first of all, as it is an obstetrical emergency, so I will first call for help for my team, including my labor room staff and my senior on-call consultant, and alerting the operation theater staff also. And I will make sure, then I will make sure the field safety of my patient, and making sure the left uterine displacement of the patient, as the patient is more than 20 weeks of gestation. After that, I will assess the patient for 10 seconds for carotid pulse and breathing of my patient. If there is no pulse and breathing, I will immediately proceed to the cardiopulmonary resuscitation. For that, I will do the chest compression and ventilation. Chest हम्म। compression, 30 compression per 2 ventilation ratio. I will continue the CPR with the help of my assistant for 2 minutes, and during the CPR, I will ask my assistant to document it and maintain the IV line, pass the Foley's catheter, and I give the IV fluids to the patient, give the oxygen to the patient, and continuing the CPR at the center of the chest, and IV line should be maintained above the level of diaphragm. And the CPI is done in such a way that 30 compression, 2 ventilation, and the compression depth is about 2 to 3 inches or 5 to 6 centimeters at the center of chest at the rate of 100 compression per minute. And ventilation is हम्म। done about 100 ventilation per minute. Then I will ask for automatic defibrillator, external automatic defibrillator, bring AED, and assess the rhythm of my patient while doing the CPR. Once the rhythm is shockable, then we'll ask my assistant to give shock to the patient by assessing the rhythm, if the rhythm is shockable. If not, then I will continue the CPR. I will continue CPR until 4 minutes reach, and then I will do the perimortem cesarean section of my patient. There and then I will hold the scalpel and give the midline incision in the lower abdomen and the vertical incision on the uterus also, and delivering the baby and handing over to the neonatologist, closing the abdomen with a sponge and packing it, and continuing CPR and maintaining the airway by doing the endotracheal tube intubation. Once the patient is stable or revived at any time during the CPR, I will shift the patient to the operation theater. Under the supervision of senior obstetrician and a senior anesthetist, I will close the abdomen in reverse layer and shift the patient to the ICU for further monitoring and management. Then monitoring of the vitals and debriefing of the patient, and performing the duty of condor and doing the risk management and counseling with the patient after that. आई थिंक दिस वाज वेरी गुड, और आपने इसे बहुत सिंपल करके बताया, विच इज वेरी गुड।
अगर याद करना हो किसी ने तो दे कैन आपका सुने और याद कर लें। इसके अंदर एक चीज और कि आप व्हेन यू वर सेइंग के यू वर चेकिंग, बिल्कुल शुरू में कि आप उसकी ब्रीदिंग और उसकी पल्स चेक करोगे, वहीं पे आपने स्टार्ट किया कि इफ शी इज बीपी लेस पल्स, तो ये भी तो हो सकता है कि उसकी पल्स प्रेजेंट है या वो, तो फिर सीपीआर नहीं होगा, फिर आप मेंटेन एयरवे और वो सारा कुछ करोगे। ठीक है। जी मैम। अगर उसकी पल्स और ब्रीदिंग प्रेजेंट है तो फिर ओपन एयरवे और सिक्योर वही सारा कुछ करोगे ना, सिक्योर करोगे और रेस्क्यू ब्रेथ्स दोगे खाली। ठीक है। सीपीआर तो तब है जब पल्स और ब्रीदिंग आपको नहीं मिली, एब्सेंट है। एसिस्टली मिली, पल्स एब्सेंट जी। तो आप उस ट्रैक पे तो चले गए हो, और बेसिकली तो स्टेशन भी उसका ही है, लेकिन उसमें ऑप्शन तो है ना कि अगर आपकी ब्रीदिंग और पल्स प्रेजेंट है तो फिर तो खाली आप ओपन और सिक्योर एवे करोगे, और फिर उसके बाद आप ऑब्वियसली फिर आप उसकी सिर्फ रेस्क्यू मशीन प्रेस लोग करोगे। वर्कआउट जी कर। फरत। जी फरत। सलामकुम मैम, मेरा यही क्वेश्चन है कि ये तो हमें सिनेरियो पता है, हमने एंड तक लेके जाना है, लेकिन एग्जाम में हम्म जैसे अगर बीच में पल्स आ जाती है फिर मैं हमने बताती उसको हूँ। कैसे, यस, ये चीज। इसके अंदर मैंने अगली यही बात मेंशन करनी थी। एक तो सबसे पहले था कि बीपी लेस पल्स लेस है, आपने उसका 30/2 करके सीपीआर शुरू कर दिया। उसके अंदर एड्रीनलीन भी देनी है एवरी 3 to 5 मिनट्स, राइट। और उसके बाद हमारा ने जैसे कहा था कि 4 मिनट्स तक सीपीआर है, विद इन 4 मिनट्स आई विल टेक डिसीजन फॉर पेरी मॉटम सिजेरियन सेक्शन अदरवाइज। तो उसमें इसी तरह ही है कि जब आप उसको 30:2 करके सीपीआर शुरू करोगे, और उसका आप एवरी 3 to 5 मिनट्स एड्रीनलिन दे रहे हो, लेकिन उसके साथ ही दोबारा आप उसकी पल्स चेक करोगे। अगर उसकी पल्स फिर से एब्सेंट है और उसका सिस्टली वो दोबारा नहीं एसिस्टली है, तो आप उसका पेरीमोटम सिजेरियन सेक्शन करोगे। और अगर पल्स वापस आ गई है देन यू कैन कंसिडर डिफिब्रिलेशन और वो सारा कुछ। ठीक है। मैडम, मैम हम्म। डिफिब्रिलेशन को कब, जी मतलब हमारा एडवांस लाइफ सपोर्ट का मैडम, इसको कब हमने करना है और किस तरह करना है, ये एग्जाम में पूछा गया था। उसका रिदम पे डिपेंड करता है। जब आपने उसका 3:2 करके सीपीआर शुरू किया, और साथ आपने उसको इफ नीडेड उसको 3 to 5 मिनट एवरी 3 और 5 मिनट्स में आपने उसे एड्रीनलिन दी, उसके बाद आपने उसे रीअसेस किया। अगर रीअसेस में उसका वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, जिसे कहते हैं कि उस तरह से पल्स नहीं मिलती, लेकिन आपको ईसीजी के ऊपर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया मिल रहा है या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन मिल रही है, तो उसके अंदर फिर आप डिफिब्रिलेट करते हो। वो रिदम होता है ईसीजी पे। और उसमें फिर ये भी होता है, देखो दो तरीके होते हैं। जब आपने 30:2 सीपीआर शुरू किया, साथ इफ नीडेड एड्रेनालिन दी, फिर रीअसेस किया। रीअसेस में अगर बिल्कुल एसिस्टली है तो आपने डायरेक्ट पेरीमोटम सिजेरियन सेक्शन कर दिया। अगर उसके अंदर ईसीजी आ जाती है लेकिन उसमें वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, तो आपने डिफिब्रिलेट किया और फिर रिस्पॉन्स देखा। अगर फिर वो सेम रिस्पॉन्स है, यानी कि वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया या फिब्रिलेशन आ रही है, तो फिर आप डिस्पाइट डिफिब्रिलेटर, तो फिर आप उसकी वही हिस्ट्रोटमी या वो जो भी पेरीमोटम सिजेरियन सेक्शन कंसिडर करोगे। ठीक है ना। फरत ने हाथ खड़ा किया हुआ है। सॉरी मैम, जी। ठीक है। सो अदरवाइज द रेस्ट वाज ब्यूटीफुल। हमारा ने जो बोला इतना अच्छा बोला कि आई थिंक कि वो बहुत अच्छे मार्क्स वाला था, एक्सेप्ट कि आपको थोड़ा सा अगर वहां पता नहीं डमी हुई तो परफॉर्म ही ना करना। इसके साथ साथ आई थिंक हमारा ने बीच में मॉनिटरिंग कैथेटर वो चीजें भी बोली, साथ ऑब्वियसली कॉज ऑफ सीपीआर की भी थोड़ी, कॉज ऑफ कोलैप्स की भी थोड़ी सी अगर बात कर दो कि वजह क्या है, कि अंदर एब्रप्शन हुई थी या अंदर कोई और हेमरेज है या एलर्जिक रिएक्शन हो गया या क्या हो गया, तो उसका भी अगर थोड़ा सा, बिकॉज आपको फिर अगर, और बड़ा से अच्छा बात की कि स्पेशली इफ इट वाज सक्सेसफुल इसके अंदर, हमारा ने बात की कि वो ओपन करके जब बेबी आउट हुआ सीपीआर कंटिन्यू होगा, और उसके बाद शी सेड कि फिर मैं थिएटर में शिफ्ट करूंगी एंड ऑल। वैसे सीपीआर के अंदर थिएटर शिफ्टिंग की कहीं बात नहीं होती है, मतलब यू डोंट नीड टू शिफ्ट पेशेंट टू ऑपरेशन थिएटर, यू क्लोज, यस यू कंसिडर एंटीबायोटिक्स एक्सेट्रा आफ्टर द सीपीआर इज सक्सेसफुल। लेकिन पेरीमोटम सिजेरियन सेक्शन में ओके, शिफ्टिंग पेशेंट टू ऑपरेशन थिएटर, ठीक है। आई थिंक इट वाज, आपने जहां से भी किया है बड़ा आपका ये बात भी बड़ी जेन्युइन लगी कि
बेबी आउट करके आपने पैक कर दिया और सीपीआर कंटिन्यू किया, अगर सक्सेसफुल है तो यू शिफ्टेड हर टू ऑपरेशन थिएटर टू क्लोज द एब्डोमेन। अदरवाइज वैसे सीपीआर में ये बात मैंने नहीं कहीं पढ़ी कि आपको थिएटर में शिफ्ट करना होता है। उसमें बस आप सीपीआर इट सक्सेसफुल यू कंसिडर एंटीबायोटिक्स एक्सेट्रा। ठीक है। नहीं मैडम, जब ये पेरीमोर्टम सिलेरियन सेक्शन अगर कर दिया है हमने और पेशेंट रिवाइव हो जाती है इसके बाद, तो फिर हमने उसकी जो करनी है स्टिचिंग वो ऑपरेशन थिएटर में जाके करेंगे। इसमें दो स्कूल्स ऑफ थॉट्स है। उसमें ये भी होता है कि आप उसी वक्त क्विकली बंद ही कर दो उसको, मतलब साथ सीपीआर हो रहा है, आप सीपीआर के साथ एब्डोमेन क्लोज कर सकते हो। उसमें वो तो नहीं होता कि आपका क्लोजर ऑफ एब्डोमेन, ताकि आप वहीं पे जहां पर आपने यूट्रस ओपन की हुई है उसको आप एटलीस्ट यूट्राइन वॉल्स को क्लोज कर दो, क्योंकि अगर सीपीआर से वो रिवाइव करती है तो यूट्राइन वॉल्स ही इतना ब्लीड करती हैं कि वो एक नई मुसीबत पड़ जाती है। तो अगर जब सीपीआर हो रहा है बेबी आउट करके वहीं पे वॉल क्लोज करो फटाफट, और साथ साथ सीपीआर कंटिन्यू होता है, और उसके बाद एब्डोमेन ही क्लोजर रह जाता है, चलो वो बात की बात है। वो आप उसके लिए स्पेशली ऑल द वे व्हेन द पेशेंट हैज बीन थ्रू सीपीआर, उसके बाद आपने जब एक दफा पेशेंट स्टेबल करके तो उसकी मूवमेंट और मोबिलाइजेशन के बजाय यू कीप द पेशेंट देयर और फिर सिर्फ एब्डोमेन ही क्लोज करना रह जाता है। जो दूसरी बात आपने की कि आप उसकी पैकिंग करके सीपीआर करें, ये बात फ्रेंकली मैंने कहीं पढ़ी नहीं है सच के पैकिंग के साथ सीपीआर किया जाए, बट गलत ये भी नहीं लग रही। लेकिन मैंने जहां तक देखा है उसमें शिफ्टिंग टू ऑपरेशन थिएटर जो है उसकी जरूरत नहीं होती। जी मैडम ठीक है। क्योंकि एक पेशेंट जो सीपीआर में से गुजर के रिवाइव की है और फिर आप उसको, उसमें शिफ्टिंग की बात ही रह जाती है, और अब्डोमिनल और यूट्राइन वॉल क्लोज किए बगैर सीपीआर करना वाली बात भी जो है वो नहीं ठीक। तो आई थिंक सीपीआर के साथ साथ जारी रहेगा। वॉल क्लोज करने में 2 मिनट लगेंगे, वो आप साथ ही क्लोज कर दोगे, और उसके बाद चाहे पैक कर दो, चलो एब्डोमेन बाद में क्लोज हो जाएगा और फिर आप वो करो। लेकिन यू डोंट, उसमें कहीं ड्रेपिंग नहीं है, कहीं शिफ्टिंग टू ऑपरेशन थिएटर नहीं है। पेरीमोटम सिजेरियन सेक्शन इज समथिंग विच इज डन वेयर एंड देन। उसके अंदर चाहे रिवाइव कर जाए तो भी क्लोजर वही हो जाएगा, और उसके बाद आप एंटीबायोटिक्स और वो चीजें देख सकते हो। जी राबिया। मैम इसमें जो लुक फॉर द कॉज है, मैं ये हम्म एक अगर हम हैं पर्सन, हम तो सीपीआर करें, तो मैम ये हमारा कोई असिस्टेंट होगा ना जो लुक फॉर इट्स द अ कॉज कॉल फॉर करेगा। हेल्प। शुरू में हमारा ने इतनी अच्छी बात की थी कि कॉल फॉर हेल्प है, इसमें पूरा आपको एक लोगों का आपको टीम चाहिए। यू इवन नीड एन एनेस्थेटिस्ट, आपको आपको पूरी एक टीम चाहिए, आपको ऑब्स्टेट्रिशियंस चाहिए साथ, जो कि साथ साथ मॉनिटर कर रहे हैं, कॉज को रूल आउट कर रहे हैं, और साथ में वो कोई एक कैथेटराइज कर रहा है। जब भी ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी होती है, देयर इज अ वेरी बिग पॉइंट कि आप कॉल फॉर हेल्प करते हो, या इवन यू शाउट फॉर हेल्प, के मतलब देयर आर मेनी अदर पीपल जो उसी वक्त वहां पहुंच जाते हैं। ठीक है। दो सर तीन जी चीजें मैंने, इसमें बहुत है, मैं जी रहा। मैम कोई और मतलब ये चीज मेंशन करनी है कि हु विल लुक फॉर, हु विल डू, मतलब स्पेसिफाई करना है हमने बताते हुए कि ये काम कौन करेगा वो काम कौन नहीं करेगा। नहीं, ड्यू व्हेन यू आर डूइंग, जब भी सीपीआर कर रहे हो या जब भी कोई भी ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी कर रहे हो जिसके अंदर आपने कॉल फॉर हेल्प की है, उसमें यू शुड नो, जैसे हमारा ने मेंशन किया कि ये लोग आए तो बेहतर है, बट यू डोंट नीड टू मेंशन, क्योंकि जब आपका हो रहा होता है, ड्रिल्स होती हैं, एवरीथिंग, एवरीवन नोज देयर जॉब, बट द थिंग इज कि अगर नहीं भी पता तो डजेंट रियली मैटर कि कैथेटराइज कौन कर रहा है, और या फिर अगर कोई और ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी है इसके अंदर, तो हमने फीटल हार्ट की बात ही नहीं करनी, लेकिन अगर कोई और ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी है तो कौन फीटल हार्ट ले रहा है या कौन। दो तीन चीजें देखो, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अबाउट मैटरनल सीपीआर, इसके अंदर दो तीन चीजों की बात आप देखिए, कब आपने सीपीआर स्टार्ट करना है, कितने रेट पे स्टार्ट करना है, कब आपने ड्रग स्टार्ट करनी है, कब आपने जो है पेरीमोटम सिजेरियन का फैसला करना है। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पेरीमोटम सिजेरियन सेक्शन का लफ्ज ही ऐसा है कि डोंट फॉरगेट अबाउट पेंट ड्रेप, फॉरगेट अबाउट shifting to operation theater, forget about everything, only consider prophylactic antibiotic if the patient revives, otherwise just do the cesarean section जिसमें आपकी स्पीड मैक्सिमम है। यस, आप मेंशन करो मिड लाइन मिड लाइन मिड लाइन। हम सब ने सरकारी अस्पतालों में काम, वी ऑल हैव बीन थ्रू दिस सिनेरियो कि हमने पेरीमोटम सिजेरियन किया, एक ना एक कर ही लेता है कोई ना कोई। वी आर मोर ट्रेन्ड टू डू इट थ्रू द ट्रांसफर्स से ट्रांसफर्स, तो चलो ठीक है, अगर आपने किताबी बात भी करनी है तो फिर मिड लाइन कर लो। बट द थिंग इज कि वंस यू हैव डन द मिड लाइन, उसके अंदर ऑब्वियसली यू फॉरगेट अबाउट द ब्लैडर, यू फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, आपने बस बच्चा निकालना है, क्योंकि पेरीमोटम में ये मकसद नहीं है कि आपने कैथेटराइज किए बगैर सिजेरियन शुरू कर दिया या नहीं।
पेरीमोर्टम का मतलब ये है कि आपने मदर को बचाने के लिए करना है, हम बेबी को बचाने के लिए नहीं कर रहे, मदर को बचाने के लिए। जैसे ही बेबी आउट होगा ताकि मदर का एओर्टो केवल कंप्रेशन ठीक। So when you're talking about perimortem cesarean section, so it should sound like a perimortem cesarean section. Forget about any other viscera, forget about everything else, forget about the baby, forget about everything else. आपने बस बेबी निकालना है क्योंकि आपका मकसद है ताकि मदर की सर्कुलेशन री एस्टेब्लिश हो। जब भी कोई चीज एग्जाम में कर रहे हैं उसका कोई मकसद है। whenever you're doing any maneuver, whenever you're doing anything, तो जब आप बता रहे होते हो एग्जामिनर को तो उसको ये पता चले कि यू नो कि आप ये कर क्यों रहे हो। So you're doing only to re-establish maternal circulation. आपको अब और कोई वो फिक्र नहीं है कि मदर का ब्लैडर बचता है नहीं बचता है, मदर की क्या चीज सामने आ रही है, आपने बस बच्चे को आउट करना है जिस स्पीड से आपको लगता है कि आप मैक्सिमम आउट कर सकते हो। एंड वंस यू हैव डन इट, आई डोंट थिंक दैट लिविंग बिहाइंड द यूट्राइन वॉल्स ओपन इज अ गुड आइडिया। फटाफट उसको सूचर आप लगाते हो, चाहे मोटे मोटे लगा दो सूचर, लेकिन आप फटाफट उसको क्लोज करते हो। उसमें भी बहुत आर्टिस्टिक तरीके से क्लोज नहीं करना होता उसे, आप एक ही लेयर में चाहे बड़ा सा क्लोज करो। यस यू कैन कीप द एब्डोमेन ओपन एंड कंटिन्यू द सीपीआर, वो एक अलग बात है। और बट द थिंग इज कि इफ शी रिवाइव्स देन यू स्टिल डोंट नीड टू, फिर भी ऑपरेशन थिएटर, क्योंकि इट वाज अ पेरीमोर्टम सिजेरियन सेक्शन, उसको थिएटर में शिफ्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रोड साइड एक्सीडेंट का पेशेंट है और न्यूरो की इंजरी के साथ आई हुई है पेशेंट, हेड इंजरी के साथ, एंड शी इज इन द न्यूरो सर्जरी इमरजेंसी एंड यू आर डूइंग सीपीआर, और वहां पर आपको आपने साथ ही पेरीमोर्टम सिजेरियन किया है, बेबी आउट हुआ है, यूट्रस तो क्लोज एब्डोमेन, यू डोंट शिफ्ट पेशेंट टू ऑपरेशन थिएटर। इंस्टेड उसकी जो न्यूरो सर्जिकल इमरजेंसी है वो उस चीज को ध्यान किया जा रहा है। शीज अंडर एक और डिपार्टमेंट भी उसको डील कर रहा है ना, तो या फिर कोई और ट्रॉमा, मोस्टली तो रोड साइड एक्सीडेंट के साथ इस तरह के आएंगे पेशेंट्स, वरना जो एब्रप्शन वाली है या कोई और है वो तो फिर आपके पास इतना होता है, वो उसकी तो फिर प्रोटोकॉल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। सो अगर इस तरह का मैटरनल कोलैप्स का पेशेंट है तो उसमें एवरी स्टेप इज इम्पोर्टेंट। और उसके अंदर चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, पार्ट टू एफसीपीएस हो या वो एफसीपीएस का एग्जाम हो, इसमें एवरी स्टेप एवरी टाइमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि आपने किस टाइम पे क्या बात स्टार्ट की है, हमारा वाज वेरी गुड, बट अगेन उसका 60% वाला था। मैंने आपसे कहा है कि ये फ्रेंकली जो ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसीज है इसमें तो फुल मार्क्स भी आ सकते हैं, तो आप अपना 70-80% वाला तो तैयारी करके जाओ ना एटलीस्ट। एब्डोमिनल और यूट्राइन इंसिजन का कंफर्म यही है यार, मिड लाइन ही बोलो। पता नहीं क्यों पूरी दुनिया में कन्वेंशनली कहा जाता है कि मिड लाइन से बड़ी जल्दी निकल आता है, बट हम लोगों ने जिंदगी में हजारों लाखों सिजेरियन किए होते हैं ट्रांसवर्स से। तो हमें लगता है, अब जैसे आई हैव डन अ पेरीमोर्टम से, मैंने इसलिए न्यूरो सर्जरी वाली एग्जांपल दी क्योंकि मैंने न्यूरो ही के हेड इंजरी के पेशेंट की न्यूरो डिपार्टमेंट में जाके पेरीमोर्टम सिजेरियन किया हुआ है। अच्छा, उसके अंदर एक थोड़ा सा ये भी होता है कि यू डोंट इवन, जैसे हमारा ने बड़ा अच्छा बोला, यू डोंट इवन नीड टू टेक मच कंसेंट्स, आपने मदर की बस जान बचानी है। उसके अंदर अगर ज्यादा ही हो तो चलो आपके साथ अगर कोई कॉल फॉर हेल्प का बंदा है तो वो वर्बली इन्फॉर्म कर सकता है उसके अटेंडेंट्स को कि दिस इज व्हाट वी आर अप टू। और इसके अंदर ऑब्वियसली बिकॉज़ बेबी सो स्मॉल, या इवन बेबी 32-36 वीक्स का भी हो सकता है, तो बेबी लेकिन इसके अंदर वर्बल से आगे की कोई कॉन्सेप्ट या कोई चीज होती नहीं क्योंकि अब आप मदर के इंटरेस्ट के लिए कर रहे हो। सो इंसिजन, सो मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमने इतने किए होते हैं कि हमें यूं लगता होता है कि यस ट्रांसफर्स में वी कैन डू बेटर, बट अगेन उसमें ब्लैडर सेपरेट करना या बहुत लोअर सेगमेंट को ढूंढना या उस उन चक्रों में हमने एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है इसलिए। लेकिन मिड लाइन गिव्स बेटर एक्सपोजर, मिडलाइन में आप बहुत क्विकली करते हो, यू कैन टॉक अबाउट मिडलाइन। मिडलाइन की बात करो, यू नीड एन असिस्टेंट, आपके पास एक बस नाइफ आपके हाथ में हो और बाकी आप उसका बेबी आउट करो एंड दैट इज इट। तो उसमें अपनी फर्स्ट थिंग इज डेफिनेटली फील एंड लिसन है कि आप सुनो कि ब्रीदिंग है या नहीं, अब उसकी पल्स देखो, शी इज उसके लिए पल्सलेस बीपी लेस है, इमीडिएटली स्टार्ट सीपीआर। और बस उसके बाद बाकी हमारा ने बहुत अच्छा बताया था, ठीक है। तो इसके अंदर दो तीन चीजें वही क्लैरिटी वाली जो मैंने अभी आपको बताई है कि कब एग्जैक्टली क्या स्टार्ट करना है उतना काफी है। थोड़ी थोड़ी ड्रग्स की डोजेज अगर आप करना चाहते हो देख लो, एड्रीनलिन किस तरह कब देनी है। यू विल हैव अ रिससिटेशन टीम विद यू, आपके पास पूरा एनेस्थीसिया की टीम, इंटेंसिव केयर की टीम मौजूद होगी, तो ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली बिकॉज एग्जाम के लिए इट्स बेटर कि आप उसका वो कर लो फटाफट।
थोड़ा सा देख लो। बाकी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, इसका हल्का सा नेट से एक पैटर्न देख लो। जो पल्सलेस जिसे वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया कहते हैं, उसमें तेजी 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 इस तरह की वेव्स आती हैं, और जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है उसके अंदर छोटी 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 ऐसी ऐसी वेव्स आती हैं। तो वो आप एक पैटर्न थोड़ा सा देख लो क्या, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में यही पढ़ाओ कि सिचुएशन में आई और ऐसी है। और एसिस्टलीज भी नो के ऑलमोस्ट लाइक इट्स अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और कुछ इसमें? थोड़ा सा अब आपको हल्का सा परफॉर्म करना भी आना चाहिए कि सीपीआर में आप उसकी चेस्ट कंप्रेशंस किस तरह दे रहे हो, बिल्कुल 90 डिग्रीज पे उसके ऊपर खड़े होके मोर देन 50% आपने उसकी चेस्ट को प्रेस करना होता है। उससे उसका कार्डियक आप उसको कंप्रेशन देते हो, इफेक्टिव सीपीआर जिसको कहा जाता है। और कोई मैडम सवाल? मैडम मुझे एक हम्म, क्वेश्चन करना था कि जैसे सीपीआर हम कर रहे होते हैं तो कितनी देर तक हम सीपीआर करते हैं, मतलब उसको 4 to 5 मिनट सीपीआर तक या 30 मिनट तक कब तक सीपीआर कंटिन्यू? में मैं बताती हूँ, सीपीआर के अंदर आप जैसे मैंने कहा कि हर 3 to 5 मिनट्स में एड्रीनलिन दी जाती है। उसके अंदर रिदम चेक किया जाता है एवरी 2 मिनट्स। जब आप चेस्ट कंप्रेशंस दे रहे होते हैं, जो हमने कहा कि 30 to 2 की करते हैं चेस्ट कंप्रेशंस वर्सेस, जब आप प्रेस करते हो चेस्ट को, तो दो चेस्ट कंप्रेशंस के बीच में 5 सेकेंड्स का आप गैप देते हो। उसके बाद आपने एवरी 2 मिनट्स रिदम चेक करना होता है। और लेकिन आप तकरीबन 3 मिनट्स 3 to 4 मिनट्स तक यू कंटिन्यू, एटलीस्ट फॉर 4 मिनट्स आप यही वाला सीपीआर कंटिन्यू करते हो, जिसमें 3 मिनट के बाद आप एक दफा एड्रेनालिन भी देते हो। तो जब आप 4 मिनट्स के बाद उसकी दोबारा रिदम चेक करते हो एंड शी स्टिल शी हैज एसिस्टोलिक, दिस रिदम स्टिल इज देयर, अगर वो अभी भी एसिस्टली है, तो फिर आप उसका पेरीमोटम सिजेरियन सेक्शन देयर एंड देन डिसाइड करते हो। अगर आपके 4 मिनट्स के अंदर जब आपने रिदम चेक किया और वो रिदम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वाला है या वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया जिसको कहते हैं, उसके अंदर आप उसका फिर आप उसको डिफिब्रिलेट करते हो, एंड देन इमीडिएटली आफ्टर डिफिब्रिलेशन देन यू अगेन चेक द रिदम। if there is no response with the defibrillator, then you immediately decide for the cesarean or hysterectomy. जी राबिया? मैम अगर ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, ये रिदम ठीक हो गया, तो मैम फिर ये पेरीमोटम सिजेरियन नहीं करेंगे, और तो केवल हाँ नहीं, वो तो कंप्रेशन? नहीं करेंगे ना, अगर रिस्पॉन्स आ गया तो नहीं करेंगे। अगर आपका एड्रीनलिन से या आपके पीआर से पल्स आ जाती है उसकी वापस, तो फिर आपका फ्लो चार्ट उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जब आपने फील और लिसन किया था और पेशेंट की पल्स और ब्रेथ्स थी एटलीस्ट, तो फिर आप उसकी एयरवे रीचेक करोगे इंट्यूबेट और मेंटेन रेस्क्यू करके, और फिर आप अकॉर्डिंगली कंटिन्यू करोगे। ठीक है, अगर मैम तो पल्स आ गई फिर तो आपका सीपीआर सक्सेसफुल हो गया ना। मैम फर्स्ट एड्रेनालिन पल्स कितनी के देर साथ बाद रिदम भी। देना है? मैम फर्स्ट एड्रेनालिन कितनी देर बाद देना है सीपीआर 3 मिनट्स स्टार्ट के करने? बाद। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, वेलकम जी। तो इसके अंदर आपने वही कैथेटराइज भी करना है, कार्डियक मॉनिटर्स भी इमीडिएटली वो, बिकॉज आपकी एक टीम होगी, तो उसके साथ आप ये सब कर। डोजेस एड्रीनलिन की आपको देखनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम जी मैम। अस्सलाम वालेकुम जी फरा। मैम आप मतलब ये बताना चाह रही हैं कि हमने पेशेंट का पल्स लेस बीपी लेस है, हमने सीपीआर स्टार्ट कर दिया है, ठीक ऐसा है। ही है। विद इन 3 मिनट ऑफ सीपीआर अगर पेशेंट रिवाइव नहीं हो रही तो आई विल एक गिव सेकंड इधर एड्रेनालिन। रुको फरा, यू आर राइट। मेरी बात सुनो, आपने सीपीआर शुरू कर दिया 30 to 2 से, और जी हर जी, 2 मिनट के बाद उसका रिदम देखा। ठीक है, अच्छा ठीक है, यू आर डूइंग सी एवरी 2 मिनट्स यू चेक द रिदम। 2 मिनट ठीक है मैम। मिनट्स के बाद रिदम नहीं आया, शी स्टिल, यू यू कंटिन्यू सीपीआर, और जब टोटल 3 मिनट्स हुए तो यू कैन गिव एड्रीनलिन, राइट? ओके मैडम, देन यू ठीक है कंटिन्यू मैडम। सीपीआर, फिर मैडम आप उसका जी, समझ आ Madam, गया? while doing CPR, we will see the rhythm, and if the rhythm is not एवरी present टू within every 2 minutes, I will मिनट्स see the rhythm. Now, if the rhythm is not यस present and the time is 3 minutes, then I will give adrenaline. यस। And after 4 minutes, if there is no rhythm, and then I will do टोटल फोर peripartum मिनट्स cesarean section. यानी सीपीआर के 4 मिनट्स हो गए और नहीं कुछ रिवाइव हुआ, तो प्लान फॉर, यानी वो स्टिल एसिस्टली है, तो प्लान गो फॉर सर्जरी। Okay, ma'am.
और मैडम फर्स्ट किया पेरीपोटम हमने कर दिया, फिर भी पेशेंट का नहीं रिदम आ रहा, तो हमने एड्रेनालिन को कंटिन्यू करना है। हाँ, कंटिन्यू करना है। पेरीबॉटम के बाद भी अगर नहीं आ रहा तो सीपीआर तो कंटिन्यू होता रहेगा ना उसी तरह। जी मैडम, सीपीआर कंटिन्यू होगा, लेकिन साथ हम एड्रेनालिन भी देते रहेंगे। जी, एवरी 3 to 5 मिनट्स। ओके ओके, थैंक यू मैम। इसमें ये टाइमिंग्स ही हैं, और बाकी तो बड़ा जबरदस्त बताया हमारा ने। तो ये थोड़ी क्लैरिटी इसी में थी। आई थिंक वी आर डन विद। और कुछ है बात, वरना अगला टॉपिक कर लेते हैं। जी इरसा, जल्दी से आप पूछ लो फिर नेक्स्ट, या नेक्स्ट आपने मैम जो वॉलंटियर हमारा किया तो जी। एल्गोरिथम दिया हुआ था मैम, उसमें पहली दफा हमें एपिनेफ्रिन यूज किया, उसके बाद एम्यूडेरॉन यूज किया हुआ था मैम। इसका कोई डिफरेंस है कि कहाँ का है ड्रग ये चेंज? ये मैम ये ऑल्सो में जो एल्गोरिथम दिया हुआ है ना, उसमें हाँ, दिया हुआ था कि आप ठीक है, पहली ये ड्रग भी देते ठीक है, हो आप ड्रग्स एपिनेफ्रिन है, देख लो। उसके बाद ये ड्रग्स और डोजेस जरा देख लेना आप लोग। मैम ड्रग ठीक है। चेंज भी करते हैं, मतलब पहली दफा में एपिनेफ्रिन है, उसके बाद एम्यूडेरॉन हाँ, देंगे। ये एक और भी फ्लो चार्ट है कहीं पे, उसमें भी इसी तरह से है। तो ये अब ड्रग्स अपनी देख लो कि पहले आपने क्या देना, क्या यू कैन डिस्कस विद योर एनेस्थीसिया डॉक्टर्स आल्सो अपने हॉस्पिटल के कि क्या है। तो ये एड्रीनलिन या एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन का अब क्या देना है, तो अब वैसे जो मुझे आसान है जो ऑप्स की किताबों में, वो तो एड्रीनलिन ही है। जी मैम। नॉर एपिनेफ्रिन और उसका देख लेना, ठीक है। सो ठीक है, आई थिंक ये हमने कर लिया। अगला कोई टॉपिक किसी ने वॉलंटियर करना है तो आप हाथ खड़ा कर दो, खुद ही टॉपिक भी बता दो क्विकली। कोई कोई जरा यूट्राइन इन्वर्जन पे है क्लैरिटी आप लोगों को, या कोई और टॉपिक? शोल्डर डिस्टोशिया के कुछ लोग कहते हैं कि बड़े मुश्किल कोई क्विकली वॉलंटियर कर ले तो हम कोई सा एक टॉपिक कर लेते हैं। बड़े अच्छे अच्छे आप लोगों ने टॉपिक्स पहले भी बोले थे, पर किसी ने लिखा है मैडम यूट्राइन इन्वर्जन करवा दे। इन्वर्जन। ठीक है, क्विकली अगर किसी ने वॉलंटियर करना है, बिकॉज हर ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी का मोरलेस स्टार्ट सेम ही है। जितना बोलोगे उतना आपको सारी जिंदगी याद रहेगा। कॉल फॉर हेल्प, आईवी लाइन, वो सारा कुछ। जी हमारा जो पहले हाथ खड़े करेगा, बेशक वो सेम बंदा हो, वही करेगा वॉलंटियर। जी हमारा। इसके मैडम बाद मुझे लगा जैनब कोई आपकी और बारी जी। करेगा, मैं कर कर ले, लेती चलो हूँ। जैनब आप बताओ। जी मैडम, डॉक्टर जैनब करें या मैं कर रही हूँ, बता दें। पता नहीं जैनब बोल नहीं रही हैं, आप ही कर लो चलो, हैंड तो उन्होंने रेज किया हुआ है। चलो हमारा आप ही बता मैडम दो क्विकली। मैडम बताओ। हाँ जैनब, मैडम यस। इट इज एन जी ऑब्स्टेरिकल जैनब, जी आप इमरजेंसी। बताएं। गुड। स्टार्ट। हेलो। जी हाँ हाँ, वी कैन हेयर यू जैनब, बताएं। जी मैडम, it is an obstetrical emergency. Once diagnosed and after assessment, I will call for help. I will involve the senior obstetrician, anesthetist, and other on call, and my team. And we will do the patient assessment, resuscitation, stabilization, as well as documentation of each procedure, and manage the patient side by side. And then as it is then I will one of my assistant will do double IV line and draw the blood for the labs. And I will once I have seen the patient is her uterus is inverted, then I want to replace it immediately without removing her placenta, while maintaining placenta inside too. I will will try to reposition the uterus. And then we will after that we will shift the patient to the OT, and while maintaining this fist inside the uterus. And after that we will give the normal saline by applying the hydrostatic pressure with a height of 2 to 3 meters. And then with a elastic cup, by enclosing the vulva to maintain the hydrostatic pressure. If not, it is not replaced, then we will do other maneuvers. We will go for the surgical intervention. In the surgical, there is abdominal procedure and the vaginal procedures, Holton and Huntington's, and spinal procedures according to the situation.
while we will document each procedure side by side. ठीक है, नॉट बैड। सो यस, अच्छा देखो इसके अंदर दो तीन चीजें, वही मैंने कहा कि एक होता है आईएमएम का एग्जाम, उसके अंदर तो आप सिर्फ स्टेप्स ही बोल दो ना तो ठीक है। इसके अंदर आपका ना क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब स्पेशली जब आप पार्ट 2 का एग्जाम दे रहे हो या एमसीक्यूएस कभी भी, जब ये आपका एक एग्जिट एग्जाम है, आईएमएम में तो आप अगर फ्लो शीट वर्ड टू वर्ड ही बोल दो ना तो आपके फुल मार्क्स आ जाते हैं। इसके अंदर इस तरह नहीं होगा। इसके अंदर आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, ऐसे लगे कि आप डील कर रहे हो एंड यू हैव सीन द पेशेंट। क्योंकि अगर ऐसा कोई पेशेंट असल में कभी आपकी इमरजेंसी में आ जाएगा तो यू विल बी द ओनली वन, वो मरीज सिर्फ अब आपके हाथों में ही होगा। सो आपकी क्लैरिटी, अब आपकी बातों से क्लैरिटी नहीं हमें पता चल रही थी। एक तो ये भी कि देखो उसे ब्रेडिकार्डिया होता है पेशेंट को, दिस इज अ टिपिकल पेशेंट जिसके अंदर एट्रोपिन की जरूरत होती है। दिस इज अ टिपिकल पेशेंट जिसके अंदर मे बी ट्रिब्यूटलिन लेटर ऑन आपको चाहिए हो, क्योंकि आपको यूट्राइन रिलैक्सेशन चाहिए। और फिर जब आप थिएटर में लेके जाओगे तो उसके साथ ही, यानी थिएटर में जिस पेशेंट को लेके जाना पड़ा, इसका मतलब ये है कि वो उसमें यूट्रस इस तरह की है कि थोड़ा रिलैक्सेशन, ऑस की भी रिलैक्सेशन चाहिए ताकि आप उसकी यूट्रस को इन्वर्ट कर सको, उसको रिवर्ट, उसे वापस अपनी स्टेट में ला सको। सो व्हेन यू आर टॉकिंग तो ऐसे लगे कि आपने असल में ऐसा पेशेंट देखे। दीज पेशेंट्स हैव गॉट ब्रेड व्हेन यू आर, इनका हाइपोटेंशन होता है बट दे आर ब्रेडिकार्डिक, उनका ब्रेडी होता है क्योंकि वो वेगल रिफ्लेक्स की वजह से। तो उसके अंदर सबसे बड़ी इमरजेंसी ये होती है कि आपने फटाफट एट्रोपिन लेनी होती है। एंड इफ यू नो द डोज आल्सो तो बहुत अच्छा है। मेरा ख्याल है डोज अब मुझे उस तरह याद है, 600 मेरा ख्याल है होती है मिलेगी। इसकी रिससिटेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है। उसके बाद आप उससे definitely सकते हो। If the placenta is there तो placenta side रखते हो। इवन इस तरह फिर जब आप रिवर्ट कर रहे हो, देखो इसमें मोर देन 90% में तो हैंड से यूट्रस वापस चली जाएगी, लेकिन आपने बताना है कि वो हाथ आपका किधर जा रहा है और कैसे जा रही है यूट्रस वापस। सो आपने बताना है कि आपने जो इन्वर्ट हुई हुई है यूट्रस, जो कि सारी बाहर आई हुई है, उसको आपने कप करके पकड़ना है। और जब आप उसे अगर थिएटर में भी लेके जा रहे हो और उसे वापस, डज नॉट मीन कि आप फिस्ट बनाकर अंदर लेके जा रहे हो, आप उसको कप करके वजाइना में करके फिर लेके जा रहे हो। या जब आपने थिएटर में जाके भी अगर उसे वापस किया है तो आपने उसकी यूट्रस की जो फंडस है जो कि बाहर सारी आई हुई है इन्वर्ट होके, आपने उसको कप कर रखा है। यानी कि वो ये यूट्रस की वो फंडस है जो बाहर आई हुई है, आपने उसको ऐसे पकड़ा है, राइट। ऐसे पकड़ के आपने उसको अंदर वजाइना में किया। अब ये ऐसे ही है। अब जब आप उसे अंदर लेके गए हो, बिकॉज अब आपने इसको सर्विक्स में से गुजार के इस फंडस को वापस लेके जाना है अपनी जगह पे, यहाँ पे फिर आपको टर्ब्यूटलिन या कुछ रिलैक्सेंट चाहिए ताकि उसका सर्वाइकल लॉस थोड़ा सा आपको रिलैक्स्ड मिले या सॉफ्ट मिले, ताकि आप जब ये फंडस को अंदर लेके जाओगे, मैं इस आपकी बात सुनती हूँ, तो वहां पर रिलैक्स्ड हो। तो जब आप थिएटर में लेके गए हो या जीए दिया पेशेंट को, उससे भी कई दफा रिलैक्स हो जाता है। तो अभी तक आपके हाथ में ऐसे फंडस अभी भी उसकी इन्वर्ट हुई हुई है। तो जब आप उसको ऊपर लेके गए हो तो ऑस जाके आपने फिस्ट बना के इस फंडस को वापस लेके जाना है, राइट। और जब आप फिस्ट बना के फंडस को वापस अपनी जगह पर लेके जाते हो तो मोर देन 90% यहीं पे करेक्ट हो जाती है। एंड यू कीप योर फिस्ट इनसाइड। आपने ये बातें जैनब बोलनी है क्योंकि वी आर नो वन इज इंटरेस्टेड कि सर्जिकल प्रोसीजर्स फॉर इन्वर्जन क्या हो रही है। लेस देन 1% में आपको वो हंटिंगटन्स या हॉल्टन्स प्रोसीजर करना पड़ता है। मोर देन 90% में तो ये हैंड मैनूवर से ठीक हो जाती है। लेकिन उस हैंड मैनूवर की क्लैरिटी बताओ, क्योंकि कल को आप अगर वहां पर एज कंसल्टेंट ड्यूटी कर रहे हो और पेशेंट आ जाती है तो योर हैंड्स आर द ओनली हैंड्स जो उसकी लाइफ सेव कर सकते हैं। तो आपको ये पूरा मैनूवर पता होना चाहिए कि अंदर ले जाके फिर आपने उसका जब फिस्ट बना के अंदर किया, तो अब नाउ यू विल कीप योर फिस्ट इनसाइड द यूट्रस टिल द कंट्रैक्शन कम्स। ठीक है, उसके लिए फिर तब सिंटोसिनॉन स्टार्ट की जाएगी। उससे पहले सिंटोसिनॉन अगर लगा दोगे तो फिर एग्जाम फेल, वैसे भी फेल। सो अगर पहले से सिंटोसिनॉन चल रही है, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट ने आपके साथ सामने डिलीवर किया आपके हॉस्पिटल में और सिंटो जा रही थी, बेबी के निकलते इन्वर्जन हो गया, इमीडिएटली स्टॉप सिंटोसिनॉन, कीप प्लेसेंटा इनसाइड।
अगर सिंटोसोनान नहीं जा रही तो आपने तब तक नहीं लगानी जब तक फंडस अपनी जगह पर चली गई, एंड यू कीप योर फिस्ट इनसाइड द यूट्रस टिल फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन कम्स, और उसके बाद आप अपना हाथ वापस निकालोगे। सो ये मैनूवर अगर आप इस तरीके से आईएमएम में आप वो बातें कर सकते हो जैसे आपने अभी की, लेकिन अगर आप अब इस लेवल पे आपकी क्लैरिटी बहुत जरूरी है। सो इस तरीके से अगर आप कहोगे कि फॉर एग्जांपल आपका हाथ अंदर लेकिन फिस्ट से वापस नहीं फंडस जा रही, तो उस केस में फिर आप यू कैन इवन कंसिडर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यू डिड नॉट टॉक अबाउट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट step in the flow sheet of this thing of inversion। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की क्लैरिटी आपको बहुत जरूरी है। उससे पहले जल्दी से इरसा का क्वेश्चन ले लेते हैं। जी इरसा, आपने हाथ खड़ा किया है। जी मैम, मैंने ये कहना था कि जब हम अपना फिस्ट बना के फंडस के ऊपर लेके जाते हैं उसमें री इन्वर्जन के चांसेस ज्यादा होते हैं ना, तो हम एब्डोमेन से भी तो फंडस के ऊपर से पकड़ सकते हैं ना, बाहर से भी। नहीं 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 नहीं, वो अगला वो बात की बात है। जो एब्डोमेन वाला है वो हंटिंगटन है, अभी एब्डोमेन नहीं खोला पेशेंट नहीं का, मैम, हमने नहीं नहीं ऊपर सिर्फ से हाथ मैम, नहीं का नहीं मैनूवर। मैम, हमने एब्डोमिनल वॉल से ऊपर से फंडस को मतलब नीचे से हाथ दिया हुआ वजाइना से पकड़ा हुआ है, ऊपर से हाँ पुश कर रहे, और ऊपर से हमने जब फंडस पूरा रिवर्ट बैक कर दिया हुआ है, तो हम पैल्पेट हाँ हाँ, करेंगे एब्डोमिनली और वहां से उसको रोकेंगे ताकि नीचे ठीक से है। भी हाथ से पुश किया हुआ है, ऊपर से भी उसको सपोर्ट देंगे। बाय मैनुअल कंप्रेशन आप कह रहे हो, लेकिन ऐसे इसकी जरूरत नहीं होती। कीप द अदर हैंड टू कीप टू मेक योर सेल्फ श्योर कि आपका एब्डोमेन, आपका हाथ ठीक जगह पर है और यूट्रस की शेप अब ठीक आ गई है। बट सिंटोसिनॉन लगा के और उस वक्त बायमैनुअल कंप्रेशन का वैसे कहीं जिक्र नहीं है कि आप यूट्राइन कंट्रैक्शन के लिए बायमैनुअल करो या बायमैनुअल दो। यस, यू कीप योर अदर हैंड टू टू बी श्योर अबाउट द शेप ऑफ द यूट्रस एंड ऑल, बट इसके अंदर इट्स नॉट वेरी सिग्निफिकेंट क्योंकि इसके अंदर यूट्राइन एटोनी का इतना मसला नहीं है। इसके अंदर तो यूट्रस इन्वर्ट हुई हुई है और आपने वापस अपनी फिस्ट से जो चीज आपको नीचे वाली चीज फील करा रही है ऊपर से, यस यू कैन पुट योर हैंड, बट ऊपर से कोई मसाज या उसकी जरूरत नहीं है। आपका दूसरा हाथ आपके हाथ को जरूर फील कर सकता है कि यूट्राइन रप्चर नहीं है और अपनी आप सही जगह पे। जी राबिया। तो बोलने का थोड़ा मैम, इसमें जो फ्लो चार्ट बना हुआ है उसमें तो ये है कि पहले ABC, सिंटो स्टॉप, एट्रोपिन, ऐसे ही ये करना है, सारी देखो चीजें बोल के तो रिससिटेशन तो एंड पे करनी है, यूट्राइन वो इन्वर्जन। जैनब ने मैम बोला लेकिन था। लेकिन मैम एक्चुअल में तो मैम हम उसी वक्त मतलब सबसे पहले हम पीछे कर दें तो मतलब एक्चुअल में तो यही होता है ना कि हम सबसे पहले वो जैसे अगर नो बाहर आई हम उसको नो फौरन। नो, देखो मेरी बात सुनो, आप सही कह रहे हो। ऑल थिंग्स गो साइड बाय साइड। रिससिटेशन इसलिए इमीडिएटली स्टार्ट करनी है क्योंकि पेशेंट हाइपोटेंशन में होती है। पेशेंट हाइपोटेंशन होती है, ब्रेडिकार्डिक होती है। तो आपने ABC, उसकी आईवी लाइन, उसको आईवी फ्लूइड तो वहीं लगा देना, ठीक है। और साथ ही आपने उसका डायग्नोसिस बनाना है। डायग्नोसिस के साथ ही व्हेन यू आर सेइंग कि वो ब्रेडिकार्डिया में है तो आपने उसको एट्रोपिन लगानी है। एट्रोपिन लगाते ही साथ ही आपने अपना मैनूवर स्टार्ट कर देना है, और मैनूवर के बाद यू कीप योर फिस्ट इनसाइड टिल द कंट्रैक्शन कम्स। ठीक है। साइड बाय साइड, और हाँ उस साइड बाय साइड। साइड बाय साइड होता है ना, देखो ये जो हमारे सारे रिससिटेशन है हर चीज साइड बाय साइड जाती है। तो दूसरा आपने जैसे जो हाइड्रोस्टैटिक मेथड है जो कि अभी आयशा ने चैट पे भी लिखा है कि वो सल्वियन मेथड है, उसके अंदर क्या होता है वो भी थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए। उसके अंदर आप बड़ा बोर वाला ड्रिप सेट लेते हो, ऊपर 1000 cc कोई भी फ्लूइड लगाते हो, रिंगर या सेलाइन, ठीक है, और उसको साथ आप लगा देते हो। अगर आपके पास वैक्यूम कप है तो बहुत ही अच्छी बात है, वो जो इलास्टिक वैक्यूम कप है उसको आप अंदर वजाइना में ले जाके जो यूट्रस की फंडस आई होती है बाहर, उसके ऊपर ऊपर रख के उस फ्लूइड को ऑन कर देते हो। वो 1000 cc का जो फ्लूइड नीचे ऊपर जब उसकी कोई हाइट भी है कि पता नहीं 1 मीटर की हाइट पे आप उसे सेट करते हो, तो जब वो फ्लूइड तेजी से जाता है वजाइना के अंदर तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से, और फिर वो अंदर यूट्रस की फंडस को ऊपर कर देता है। सो इट इज ऑल्सो वेरी सक्सेसफुल मेथड, ठीक है। अगर ये मेथड्स फेल हो जाए, जो कि आई थिंक वेरी वेरी बहुत ही कम इंसिडेंट्स है कि ये फेल हो, तो फिर आपके सर्जिकल मेथड्स आते हैं जिसमें हंटिंगटन और हॉल्टन्स मेथड आता है। हंटिंगटन्स के अंदर आप एब्डोमेन खोलते हो और जहां पे आपका डिंपल बना होता है, जहां से इन्वर्जन हुई होती है ऊपर से, वहां LSS से पकड़ के उसको पुल करते हो और साथ ही और उसको रिवर्ट करते हो। अगर ये भी फेल हो जाए तो फिर आपको हॉल्टन्स मेथड, जो कि बहुत रेयर तरीका है, अच्छा 2 मीटर हाइट है, वो बहुत ही रेयर मेथड है कि आप पोस्टीरियर वर्टिकल इंसिजन देते हो बिल्कुल उसके डिंपल के पास, और उस उधर से इंसिजन दे के फिर आप ऊपर से
इंवर्जन को वापस रिवर्ट करते हो और फिर एब्डोमेन, फिर आप यूट्रस क्लोज करते हो और फिर कॉन्ट्रैक्शन होती है। सो ये दोनों तरीके होते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम, इनके डिटेल्स भी पता होनी चाहिए हमें प्रोसीजर्स की। वालेकुम सलाम। जाहिर है, मैं यही तो कह रही हूँ कि आपको हर चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए, हर चीज की, बिकॉज यू विल बी डीलिंग विद दीज पेशेंट्स इन योर ड्यूटी अपने उस पे हॉस्पिटल में। दीज पेशेंट्स विल कम, आप वहाँ पे सीनियर मोस्ट हो गए और फिर आप ही ने करना होगा, बिकॉज उसमें तो इतना भी टाइम नहीं होता ना कि आप अपने से सीनियर कोई किसी को बुला लो। सो इंशाल्लाह वंस यू क्लियर द एग्जाम, आपके ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक इन्वर्जन में यही है, बाकी डॉक्यूमेंटेशन वो सारी चीजें आपको पता है। मैम हम ये सारे रट्टे मारे में, बट क्लैरिटी थोड़ी सी कॉन्सेप्ट की जरूरी होती है जी। मैम एक सिंस मैंने ये खुद देखा नहीं है होते हुए, सो इसलिए मेरा एक सिली सा क्वेरी है कि जब हम लोग हाइड्रोस्टैटिक नहीं नहीं प्रेशर से सुनो, देखते हैं फ्लूइड, तो क्या वो बाहर नहीं वापस आ जाएगा? हाउ डू वी प्रिवेंट इट फ्रॉम बिल्डिंग द प्रेशर इनसाइड? यानी वो this is a good question. This is a good question. Normally, yes, hydrostatic pressure सुनने में ऐसा लगता है, लेकिन इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव। इवन अगर आप उसका सिर्फ, यू डोंट हैव दिस इलास्टिक कप, वैक्यूम कप, और आप सिर्फ उसका ड्रिप सेट ही अंदर रख के आप उसके वल्वा को थोड़ा सा क्लोज करके रखो और उसका प्रेशर जोर से दो, तो वो इवन दैट इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। तो यू जस्ट आप उसके वल्वा को थोड़ा क्लोज करके रखते हो और अंदर कप को फिक्स एंड यू करके रखते हो और यहाँ से वल्वा को क्लोज करके रखते हो, तो वो अंदर प्रेशर मेंटेन कर लेता है। थैंक यू मैम। वेलकम। ठीक है। सो बस इसके अंदर थोड़ी सी यही क्लैरिटी होनी चाहिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका हैंड वाला मैनूवर है कि आपने करना क्या है। पहले आपने जब जो प्रोलैप्स हुई होगी चीज बाहर, यानी उसकी फंडस बाहर होगी, उसको ऐसे कप करके पकड़ना है, इसको कप की तरह पकड़ के ही वजाइना में ले जाना, ठीक है। चाहे प्लेसेंटा अंदर है या नहीं है, हमने नहीं उसको कुछ करना। सिंटो बंद की हुई है और हमने जब वजाइना के अंदर ले गए, वी कैन टेक पेशेंट लाइक दिस टू ऑपरेशन थिएटर ऑल्सो। वहां ले जाके अगर आप उसको जीए दे दो या उसको थोड़ा ट्रेबिटलीन अप्लाई करवा दो, तो उससे भी ऑस रिलैक्स हो जाएगा। जब ऑस थोड़ा रिलैक्स होगा और आप यूं करके वजाइना के पे आपने रखा हुआ है, तो आप फिस्ट बना के इसकी फंडस को सर्विक्स में से गुजार के वापस अपनी जगह पर लेके जाओगे, और मोर देन 90% में इन्वर्जन इसी तरह ठीक हो जाती है। ठीक है, किसी ने क्या सर्जिकल मेथड रिपीट कर दे, वो आप लोग रिकॉर्डिंग में सुन लेना। तो द थिंग इज के वो भी कोई इतने वो मुश्किल नहीं है। ठीक है। सो वी डन विद इन्वर्जन। दो तीन और सिनेरियोस क्विकली, कौन सा करना है जल्दी से बता दो और वॉलंटियर कर लो, जल्दी जल्दी कर लो। शोल्डर डिस्टोशिया क्लियर है? कौन करेगा शोल्डर डिस्टोशिया जल्दी से? मैम मैं कर लेती हूँ शोल्डर डिस्टोशिया। आई हैव वेरी अ गुड जी। राइट। अच्छा, गुड। अच्छा. Okay, so once the shoulder dystocia develops, the first step is यस going to be called asking my senior resident over there to document the time of the delivery of the head and the document the time when the shoulder dystocia delivered. I'm going to immediately call for help, which will include calling the senior obstetrician, senior pediatrologist who's available, and all the senior members of my staff to help with the maneuvers that is going to be taking place. The first step is going to be to put the patient on the edge of the bed and immediately go for the Mac Roberts, then go for the vaginal examination to assess if the posterior shoulder and the anterior shoulder are within the pelvis or not. Established. Okay, so once that is established, I'm going to go for the Mac आयशा, आप अनम्यूट कर लेना, मैं म्यूट कर रही हूँ आप सबको। Right. So once that is established, I'm going to make the Mac Roberts position, which involves
abduction of the calf to the abdomen and then adducting the legs. This is 90% effective in increasing the pelvic cavity diameter and helping in a delivery of the baby. If this is not helpful, my second step is going to be introducing my 2 fingers at 6 o'clock position and then moving upwards towards the feeling the anterior shoulder, the back of the anterior shoulder. I'm sorry. Then I'm going to go with the suprapubic pressure. I'm sorry. And the suprapubic pressure is going to be applied just above the pubis with both of my hands in the position in which the CPR is done. So I'm going to apply the suprapubic pressure along with pushing the baby anteriorly a bit, the shoulder anteriorly a bit. This will again help in relieving the pressure, relieving the obstruction and delivering the baby. If this is not helpful, then I'm going to go for the Robin screw movement, which is going to be inserting my 2 fingers at the 6 o'clock position, moving anteriorly to the anterior shoulder, the back of it, and pushing the anterior shoulder forwards. This should help again for the delivery. If not possible, then I'm going to go for the wood screw movement, which is going to be inserting my fingers inside and feeling the posterior side of the posterior shoulder. And I will be pushing the posterior shoulder forward to make space in the pelvic cavity. And this will help in delivery of the baby. So these are the maneuvers. And if this is possible, well and good. But if this does not help, then we have destructive methods, which would involve breaking the clavicle of the baby and breaking the pubic bone. Right. So if both of बड़ी these are खतरनाक और बड़ी जल्दी आ गई हो डिस्ट्रक्टिव मेथड्स पे जल्दी आ गई अच्छा which method did I miss then? मैंने ये कर तो लिए हैं चारों. You missed many methods. I missed many of them. All right. Ma'am, if somebody else can take it because अच्छा, that so is the thing is you were very good. नहीं, you were good. मैं बताती हूँ, you were good आयशा, आपकी स्पीच बहुत अच्छी है, क्लैरिटी, वो फ्लुएंसी which is very good, उस पे आपका टाइम नहीं वेस्ट होता. बट बात वो ये है कि एमएम के लेवल का जवाब था, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं मुझे नजर आ रहा. आपके डायमीटर्स का कॉन्सेप्ट, आपका एम क्या है, वही बात है. देखो, कोई वजह है कि पार्ट 2 में फिर ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसीज आ सकती है ना, जब आप आईएमएम क्लियर कर आए हो. एंड वी नो दैट यू नो द एल्गोरिदम्स एंड यू नो ऑल द फ्लो शीट्स एंड ऑल. तो फिर क्यों पार्ट 2 में दोबारा आ रहा है? बिकॉज इट्स नॉट द सेम. अब पार्ट 2 में इसलिए आ रहा है क्योंकि दिस ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी यू विल बी डीलिंग ऑन योर ओन. अब आपके ऊपर कोई नहीं होगा लेबर रूम में व्हेन यू विल बी ऑन ड्यूटी. आपके ऊपर कोई नहीं होगा हेल्प करने वाला. यू विल बी द सीनियर मोस्ट एंड उस पेशेंट की या उस बेबी की जो लाइफ है फिर सिर्फ आपके ही हाथों से बचना है तो बचना है. सो योर कॉन्सेप्ट हैज टू बी. अब ये मैंने क्यों शोल्डर डिस्टॉर्शन, क्योंकि मुझे पता था, देखो मुझे पता था इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट. सबसे पहले तो ये बताओ कि जब आपने पेल्विक एग्जामिनेशन किया, हाउ डिड यू डायग्नोज द शोल्डर डिस्टोशिया? व्हाट इज शोल्डर डिस्टोशिया? एंड यू शुड नो दैट ma'am, नॉर्मली जिसको हम शोल्डर डिस्टोशिया समझते हैं वो शोल्डर डिस्टोशिया नहीं होते, राइट? एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू नो के फर्स्ट स्टेप पे कि वाज इट रियली शोल्डर डिस्टोशिया. एंड इफ इट वाज अ शोल्डर डिस्टोशिया तो मसला कहाँ आ गया? एंटीरियर शोल्डर फंस गया पेल्विक बोन के ऊपर, राइट? पोस्टीरियर तो पेल्विस सेंटर कट जाता है, एंटीरियर फंस जाता है. सो अब आपने क्या करना है कि एंटीरियर को का वो जो फंसा हुआ पार्ट है उसको निकालना, राइट? अब आप जितने भी मैनूवर्स कर रहे हो, उस एंटीरियर शोल्डर जो स्टक हुआ है उसको आपने रिलीज करना है. उसको रिलीज करने के लिए आपने मिक्रोबट किया और आपने सुप्राप्यूबिक प्रेशर अप्लाई किया, राइट? उससे नहीं वो निकला तो अब क्या करना है? तो एंटीरियर शोल्डर कैसे रिलीज होगा? बाय डिलीवरिंग द पोस्टीरियर शोल्डर फर्स्ट. इफ यू आर सक्सेसफुल इन डिलीवरिंग द पोस्टीरियर शोल्डर फर्स्ट तो एंटीरियर शोल्डर खुद ही रिलीज हो जाएगा. अब आपका ये कॉन्सेप्ट नहीं था. मैं पता नहीं आपके जवाब पे आप पास नहीं हो सकते इस स्टेशन पे, हालांकि आप पूरा एल्गोरिदम सुना रहे हैं. सुनने वाला बाकी लोग जिन्होंने कॉन्सेप्ट, लेकिन जो एग्जामिनर है उनके तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हैं. वो तो सुन ही सिर्फ अब इस लेवल पे रहे हैं कि अब आपने लेबर रूम में अकेले उन्हें शोल्डर डिस्टोशिया में बच्चा कुछ सेकंड में बाहर ना निकला तो वो तो आईयूडी इंट्रापार्टम हो जाएगा, डेथ.
अब बचाना आपने, ये जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा कि वेयर इज द इंटीरियर शोल्डर, वेयर इज द पोस्टीरियर शोल्डर, क्या चीज है, इट्स नॉट जस्ट causing flexion at the level of calf or doing a McRobert and all. अब उसके बाद अब आपका जो मकसद है, जो आपने पोस्टीरियर शोल्डर की जब डिलीवरी है उसके लिए आप रूबेंस कर रहे हो, रूबेंस 2 कर रहे हो, उसके अंदर बहुत सारे, यू कैन नॉट इमेजिन डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर क्या है। डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर तो एग्जाम में बेल बज जाए तब बोलने पड़े तो भी गलत नहीं है, मतलब डिस्ट्रक्टिव की तो बात ही नहीं। उससे पहले दुनिया जहां का, आप रूबेंस करो, रूबेन 2 करो, वुड स्क्रू करो, रिवर्स वुड स्क्रू करो, आप पोस्टीरियर आर्म की डिलीवरी करो, आप ऑल फोर्स पोजीशन करो, आप एंटी ग्रेविटी पोजीशन यूज करते हो। डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर तो आखिरी प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर है कि बस वो अल्लाह कभी दिखाए ना हमें वो प्रोसीजर, राइट। तो ये तरीका नहीं है, दिस इज, हालांकि आपका एल्गोरिदम में एक भी गलती नहीं है सुनने में, लेकिन ये यू कैन नॉट पास विद दिस आंसर, सॉरी। उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स इतने क्लैरिटी के, अच्छा और आपने कहा शोल्डर डिस्टोशिया हैज हैपेंड, व्हाट इज द शोल्डर डिस्टोशिया, टर्टल साइन देख लिया आपने, नोट हो गया। फीटल हार्ट सबसे पहले तो चेक हुए ना, अगर तो खुदा ना खास्ता वो पहली आईयूडी बेबी है तो फिर तो हमें कोई पैनिक करने की जरूरत ही नहीं। फीटल हार्ट चेक हो गए, और डायग्नोसिस शोल्डर डिस्टोशिया कंफर्म हुआ, वो डायग्नोसिस पेल्विस एंड anterior shoulders above the pubic rib, राइट, दिस इज कॉल्ड शोल्डर डिस्टोशिया। बट इफ यू सेइंग, उसके साथ पहले ही कह दो कि कई तो 90% से ज्यादा होते ही नहीं शोल्डर डिस्टोशिया, जो कि लोगों को लगते हैं कि शोल्डर डिस्टोशिया है, बिकॉज बोथ द शोल्डर्स आर इनसाइड द पेल्विस एंड दे कैन इजीली बी डिलीवर्ड बाय जेंटल ट्रैक्शन। फोर्स कंट्रैक्शन के साथ जब पेशेंट पुश करेगा और आप उसको जेंटल ट्रैक्शन दोगे बेबी को, तो वो खुद ही डिलीवर कर जाएगा। सो लेकिन अगर इट इज अ ट्रू शोल्डर क्या, देन व्हाट आर यू डूइंग, यू आर डूइंग मैक्रोबर्ट्स, ताकि इंटीरियर शोल्डर जो प्यूबिक ब्रेन के ऊपर रह गया था वो नीचे आ जाए पेल्विस में, और उसके लिए आपने मैक्रोबर्ट बनाया। उससे क्या फायदा हुआ, उसका एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर बढ़ गया। ये सारी एक्सप्लेनेशन इवन हमारी ग्रीन टॉप गाइडलाइन में बड़ी अच्छी दी हुई है, जो शोल्डर डिस्टोशिया की गाइडलाइन है, उसके अंदर आप सिर्फ अगर उसकी हाईलाइटेड चीज या फ्लोशीट ना पढ़ो, उसकी डिटेल अंदर से पढ़ो ना, इट्स ब्यूटीफुल। उसमें बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि किस लिए कौन सा मेनूवर क्यों बन रहा है। सो मैक्रोबर्ट जो बना, उसके अंदर एपी डायमीटर बढ़ जाता है पेल्विस का, जिसकी वजह से एंटीरियर शोल्डर भी नीचे आके डिलीवरी के मोर देन 90% चांस हो जाता है। मैक्रोबर्ट से फायदा नहीं होता। यू कैन नॉट गिव सुप्राप्यूबिक प्रेशर, आप पेल्विक साइड छोड़ के पेशेंट की साइड पे आके सुप्राप्यूबिक प्रेशर नहीं दे सकते। सो यू नीड अ हेल्पर और यू नीड एन असिस्टेंट फॉर दैट। तो आप अपने असिस्टेंट को, यस, उसका कॉन्सेप्ट आपका अच्छा था कि आपने इस तरीके से एंटीरियर शोल्डर को प्रेस करना है, क्योंकि आपने एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी करानी है, प्यूबिक ब्रिम के नीचे पेल्विस के अंदर लेके आना है। सो आपने सुप्रा प्यूबिक प्रेशर दिया, यानी कि आपने एंटीरियर शोल्डर को फील करके प्रेशर दिया एंटीरियरली, यानी कि बेबी के एंटीरियरली। इसका क्या मतलब है, यानी कि उस डायरेक्शन में कि जिस डायरेक्शन में बेबी का फेस है, ठीक है। आपने प्रेशर यूं करके जब आपने सुप्रा प्यूबिक दिया है तो उस डायरेक्शन में दिया है जिस साइड पे बेबी का फेस है। अगर बेबी का फेस मदर की राइट की तरफ है तो आप प्रेफरेबली खड़े होगे मदर की लेफ्ट साइड पे और अपने से ऑपोजिट प्रेशर दोगे सुप्राप्यूबिक सीपीआर स्टाइल में। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मैं फिर Yes, से बताती हूँ, अगर बेबी का फेस है टू, समझ आ रहा है ना, बेबी का फेस अगर मदर की राइट साइड पे है तो आप मदर के लेफ्ट पे खड़े होके सुप्राप्यूबिक प्रेशर दोगे एंटीरियर शोल्डर के ऊपर सीपीआर स्टाइल में, ताकि एंटीरियर शोल्डर प्यूबिक ब्रेन में से नीचे है। अगर बेबी का फेस मदर की लेफ्ट साइड पे है तो फिर आप मदर की राइट साइड पे खड़े होगे और अपने से ऑपोजिट प्रेशर दोगे, ताकि एंटीरियर शोल्डर टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द फेस जाए। उससे क्या होगा, बोलो उससे भी कि आपका दोनों शोल्डर्स का डायमीटर कम होगा, ठीक है, और उससे फिर बेबी का इंटीरियर शोल्डर डिलीवर हो जाएगा। तो ये बातें आपने बिल्कुल इसी तरह बोलनी है। इट्स नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट मैक्रोबर्ट्स और गिविंग सुप्राप्यूबिक प्रेशर एटसेट्रा। के बाद अगर फेलियर हो जाए, जो कि कम है मोस्टली, अगर आप ये चीजें ठीक तरह से कर रहे फंसा हुआ है, तो फिर आपने बाकी मेनूवर्स करने हैं जिसमें रूबेंस है। अब रूबेंस का क्या मकसद है, आपने बेबी को थोड़ा सा ऑब्लिक लेके आना है ताकि वो एंटीरियर प्यूबिक ब्रिम से थोड़ा सा रिलीज हो एंटीरियर शोल्डर और वो ऑब्लिक डायमीटर में आके डिलीवर हो जाए। नहीं तो रिवर्स रूबेंस, वो
आपने ठीक बताया है प्रोसीजर, लेकिन वही बात है। और फिर आपने ये क्या कहते हैं, वुड स्क्रू के अंदर हम ऑल टुगेदर घुमा देते हैं बच्चे को, ताकि पोस्टीरियर शोल्डर इंटीरियर हो जाए और फिर उस शोल्डर की डिलीवरी हो, और फिर रिवर्स वुड स्क्रू भी हो सकता है। सो वंस द पोस्टीरियर शोल्डर इज डिलीवर्ड, तो एंटीरियर शोल्डर खुद ब खुद ही नीचे आके डिलीवर हो जाएगा। ये भी नहीं, कुछ लोग डिलीवरी ऑफ पोस्टीरियर आर्म की बात करते हैं, इसमें बिफोर द मेनूवर्स, यानी कि मैक्रॉबर्ट और क्या कहते हैं, सुप्राप्यूबिक प्रेशर के बाद जब आप मेनूवर्स करने लगे हो, तो आपने पहले एपिजियोटमी देनी है या एपिजियोटमी को एक्सटेंड करना है, ताकि आप फिर ये मेनूवर्स करो। तो डिलीवरी ऑफ द पोस्टीरियर आर्म, आपको एक एक चीज बताना है कि आप बेबी के चेस्ट के सामने से जाके उसकी बेबी की रिस्ट को पकड़ के, एल्बो को फ्लेक्स करके, चेस्ट के बेबी के चेस्ट के सामने से ला के उसके पोस्टीरियर आर्म को डिलीवर कर रहे हो। जी राबिया। मैम ये मुझे सुप्राप्यूबिक प्रेशर का, मैम जो अभी आपने बताया, मैम मेरे माइंड में तो ये कॉन्सेप्ट था कि अगर एंटीरियर शोल्डर की पोस्टीरियर साइड को पर हम प्रेशर देंगे तो वो एबडक्ट होगी आगे की बिल्कुल, तरफ, तो तब तो वो यही मैं खत्म कह रही हूँ, होगा। ये मैंने यही अच्छा बात मैम। की है जिसको आपने आसान करके बोल दिया, थैंक यू। मैंने वही बस सारी बात की है कि आप एंटीरियर शोल्डर के पोस्टीरियर साइड पे शोल्डर्स को एडक्ट करो। ठीक है, मैम गुड। जी फरत। मैम मेरा ये क्वेश्चन है, जब हम रूबेन्स 2 करते हैं, जैसे कि शोल्डर की, वो इंटीरियर शोल्डर के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे जब हम हाँ, प्रेशर देंगे, वो डिक्रीज डायमीटर होगा, बेबी डिसलॉज हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब मैडम फर्स्ट किया, इससे नहीं हो रहा, तो हमने इस इंटीरियर शोल्डर के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे हाथ रख के दूसरा हमने हैंड लेके जाना है, जो पोस्टीरियर शोल्डर जो नीचे पेल्विस पे है, उसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे जाके, ताकि वो दोनों शोल्डर करीब आ जाएं और बेबी डिलीवर हो जाए। मतलब यही है ना, दोनों शोल्डर का डायमीटर कम हो जाएगा। तो फिर मैडम आपको मेरी आवाज आ रही है? यही है, आ रही है और फरत, आ रही है बिल्कुल। अच्छा मैडम, अगर फर्स्ट क्या ये वाली दोनों हमने कर लिए शोल्डर का, अगर ये जो रिवर्स वुड स्क्रू है मैडम, इसमें फिर हमने रूबिन्स 2 को मेंटेन रखना है या नहीं रखना है इंटीरियर शोल्डर पे? मैडम इसकी बड़ा नहीं समझ मुश्किल आ है रही। रिवर्स वुड स्क्रू के साथ, नहीं उसमें उस पे ना तो हमने मेंटेन, बेबी को उसमें बस होल आप वुड रोटेट स्क्रू करना है ना करो, मैडम, उस पे बेबी को रोटेट ओवरलैप नहीं करना है। करना। हाँ, उसमें ओके होल रोटेट करना है, ओके बिल्कुल। ओके। और दूसरी चीज ये कि आई वुड लाइक, जब आप परफॉर्म भी कर रहे हो ये वो, बट अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, डिलीवरिंग द पोस्टीरियर आर्म, आई फाइंड इट इजियर देन डूइंग द वुड स्क्रू एंड ऑल। सो अगर फंसी गए हो, अल्लाह ना करे, बिकॉज दिस शोल्डर डिस्टोर्शिया इज अ नाइटमेयर एक्चुअली। ये एक नाइटमेयर, अल्लाह ना करे कोई इसमें से गुजरे, लेकिन अगर कभी गुजर ही जाए या गुजरे हो, तो आपने भी नोट किया होगा कि अगर मैक्रॉबर्ट और आपका सुप्राप्यूबिक प्रेशर वाला काम नहीं चला, तो फिर आप डिलीवरी ऑफ पोस्टीरियर आफ्टर एक्सटेंडिंग द एपिजियोटमी, डिलीवरी ऑफ पोस्टीरियर आर्म इज कंपैरेटिवली इजियर टू डू देन डूइंग द वुड स्क्रू एंड ऑल। हाउएवर, इसमें किताब में कुछ भी आप पहले कर सकते हो, यू कैन डिलीवर द पोस्टीरियर आर्म फर्स्ट, या फिर वो ट्राई कर लो, या फिर आप वुड स्क्रू कर लो, आप अकॉर्डिंगली देख सकते हो। अच्छा, उन सारे प्रोसीजर्स अगर ये फेल हो गए, तो उसके बाद ऑल फोर्स क्या है? ऑल फोर्स इज अ डिफिकल्ट थिंग, बट अगेन ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर से तो बेहतर है। उसमें आप पेशेंट को ऑल फोर्स पोजिशन में लेके आते हो, उससे ये होता है कि थोड़ा सा जब पेशेंट उल्टी, जिसे कहते हैं ना, ऑल फोर पोजिशन में आती है, तो फिर अब जो पोस्टीरियर शोल्डर है बच्चे का, जो असल में पोस्टीरियर ही है, वो अब ऊपर आ गया ना, करते हो, राइट? सो दैट इज अनदर वे, फोर्स कहते हैं। और अगर वो भी फेल हो गया तो फिर नो, नहीं तो फिर आप उसके बाद है जिसमें अब आप क्वेश्चन कर ले, हसमा आप कर लो। मैम मैंने ये पूछना था कि हमें सारे मैनोवेयर बताने हैं ना जब हम एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये तो नहीं कहना कि हमें सब आने पोस्टीरियर आर्म चाहिए, इजी बिल्कुल। है क्या ये, नहीं हमें एक्सप्लेन तो सभी करने हैं ना, क्योंकि हमारे एग्जामिनर हमसे कहते हैं कि आप ड्रिल करें और एक्सप्लेन करते जाए। उनका आगे कोई से क्वेश्चंस नहीं होता है कि वो बीच में हमसे पूछे हमें इंटरप्ट करके, वो कहते हैं बस कंटिन्यू करें जो दे जो है। डोंट, तो वी हैव टू मैंने डू देम आयशा इन से स्टेप इसीलिए वाइज बीच में नहीं मैनर। किया, मैंने इसीलिए आयशा को यस, बोलने दिया पहले सारा, लेकिन वो जो सारा आप बोल रहे हो उसी में तो आपका आप सारी असेसमेंट हो गई, योर यस मैम, तो मेरा क्लैरिटी ये ऑफ कॉन्सेप्ट्स। हाँ जी।
पोस्टीरियर आर्म एक्सट्रैक्शन आपने भी कहा कि मैम वो इजी है, और इजीली प्रैक्टिस में भी वही ज्यादा इजी तो वो हमने भी नहीं है, किया है हाँ, जी। लेकिन बट रिवर्स आई वुड फाइंड इट स्क्रू मोर और वुड सक्सेसफुल। स्क्रू के 180 डिग्री, और उसमें पोस्टीरियर एस्पेक्ट, एक्सटीरियर एस्पेक्ट और पूरा रोटेट करना है, उससे ज्यादा बेहतर पोस्टीरियर आर्म एक्सट्रैक्शन है। तो हमें तो उनको सब कुछ बताते हुए आना है ना, रोबिन ट्यूब से भी वुड स्क्रू, सब भी रिवर्स बताना वुड है, मैं स्क्रू, आपको देन वी हैव टू प्रैक्टिकली गो। बता रही थी ऐसे। यस ओके यस मैम, बस हमें क्योंकि वो हमसे कहते हैं कि वो हमसे कंसीडर करते हैं कि वी हैव टू टेल ऑल द मैनोवर वी आर गोइंग टू अप्लाई ऑन द पेशेंट विद इन 5 minutes, if 5 to 7 minutes, if it is less than 7 minutes, and in all 4 position we do all that maneuver एग्जैक्टली, in that position. आपने बोलते जाना और आपके नंबर लग जाने हैं। वो इस तरह थोड़ी कि जैसे मैं भी आपको बोलने दिया सारा, Thank you मैम। उनका खत्म हो गया दिन, फिर मैंने बताया ये भी हो, फिर मैंने जी इरसा। और मैम जब हम हेल्पर का पूरा निमोनिक फॉलो कर चुके होते हैं, हमने मतलब कि पोस्टीरियर आर्म को डिलीवर किया नहीं हुआ, फिर सारे मैनूवर्स किए, पेशेंट को रोल ओवर कर दिया, फिर रिपीट भी कर दिया, तो डिस्ट्रक्टिव से पहले हम उसका एक्सिलरी स्लिंग बना के भी तो पोस्टीरियर एक्सिला को निकालने की कोशिश भी कर सकते हैं ना, डिस्ट्रक्टिव से ये मैंने पहले। कहीं नहीं पढ़ा, आई डोंट नो, ये मैंने फ्लो शीट्स में नहीं है पोस्टीरियर एक्सिलरी, या तो इसका कोई मैनूवर का ये मैम ये नाम है, एडिशनल ये एडिशनल गाइडलाइन मैनूवर्स में में ऑल्सो में दिया हुआ है ना कि आप अपनी 2 मिडिल फिंगर्स को बेबी के एक्सिला में डाल के देख लो। पूरा इफ उसका यू वांट टू शोल्डर बार मेंशन, निकाल सकते हैं। इफ यू तो वांट मतलब टू हम अपना मेंशन यू डिले कैन, कर इफ यू सकते हैं डिस्ट्रक्टिव कर, प्रोसीजर्स को बिल्कुल ठीक है, एंड पे। आप अगर मेंशन करना चाहते हो, गाइडलाइंस वगैरह में नहीं है, ऑल्सो में दिया हुआ है, आप बिल्कुल कर लो मेंशन, ठीक है, तो जी मैम। वो भी ठीक है। जी जी फरत, उनका मेरे ख्याल से हाथ है, सॉरी मैम, ठीक है, पहले का था। कोई बात नहीं। सो ठीक है, सो गुड। तो इस तरीके से है, और फिर ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेशन टाइम और वो सारा बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक बस मैं आपको यही क्लियर करना चाह रही हूँ कि डोंट टेक इट एज कि आपने बस एल्गोरिदम बोल देना है, और आपको जो है ना, जैसे आईएमएम में था, देयर इज अ डिफरेंस, राइट? आपका कॉन्सेप्ट, आपका परफॉर्मेंस, वो सारा जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, वहां पे मुश्किल। जी डॉक्टर मख्तर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रूबा, मेरा क्वेश्चन ये है कि वंस वी परफॉर्म ऑल द मैन्यूवर्स और बेबी डिलीवर नहीं होता है, तो बिफोर टेकिंग द वुमेन ऑन ऑल फोर्स, क्या हम वही लिथोटमी पोजीशन में सारे मैन्यूवर्स रिपीट करेंगे? कर ले, बिल्कुल। देखो, इवन वैसे तो ऑल फोर्स भी बात सारी है कि जब ऑल फोर्स तक बात आ जाए, या जब बात आ जाए खुदा ना खास्ता डिस्ट्रक्टिव पे या जिबनले पे, तो वो हाथ से बात काफी निकल चुकी होती है, बेबी के सर्वाइवल का चांस ना होने के बराबर, या फिर कहीं ना कहीं हाइपोक्सिया या वो डेवलप हो चुका होता है। इवन इस तरह के फंसे हुए पेशेंट को ऑल फोर्स में लाना भी बहुत मुश्किल काम है। मतलब वो पेशेंट को ऑल द वे पूरी पोजीशन उल्टी करके उसको ऑल फोर्स में लेटाना इज लाइक वेरी awkward and a very difficult position. So you can repeat all the procedures quickly again. Yes. बेसिकली तो मैम गाइडलाइन में ये दिया हुआ था ना कि ये मिडवाइफ जो है वो प्रेफर करती हैं गैस्किन मैनूवर करवाना। उसकी वजह से ये होता है कि बेबी के अपने प्रेशर की वजह से ना वो ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से डायमीटर थोड़ा बड़ा हो जाता है, और उसमें वो सारे मैनूवर्स करी होती हैं, हाँ, पोस्टीरियर आर्म को निकालना और सारा उसको करना। लेकिन डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं कि मैक ठीक है। रॉबर्ट्स करके फिर हम सारे मैनूवर्स करें। नहीं, हमने मैक रॉबर्ट्स ही करके करना है। जी मैम। ठीक है, चलो गुड। आई थिंक इसमें भी थोड़ा सा हो गया क्लियर। और कोई चीज और कौन सा कोई, आई थिंक बाकी इतने मुश्किल है नहीं। थोड़ा थोड़ा आपको हर चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉर्ड प्रोलैप्स का भी, कि ऑब्वियसली हर चीज में जहां आप कर रहे हो उसमें पहले बेबी की हार्ट बीट जरूर देख लो। अगर तो आईयूडी है फिर तो आपकी कोई इमरजेंसी रहने की, अगर नहीं है तो फिर यस, अकॉर्डिंगली कॉर्ड प्रोलैप्स के अंदर भी दो तीन यही बातें होती हैं कि मिनिमल हैंडलिंग ऑफ द कॉर्ड का, ज्यादा से ज्यादा कहीं पे लिखा हुआ है वार्म स्पंज यूज करें, कहीं पे नहीं। अगर वार्म स्पंज करना भी है तो वो आप हल्का सा कवर करने के लिए ठीक है, या जेंटली हल्का सा रिप्लेस करने के लिए ठीक है, लेकिन आप उसको हैंडल करने के लिए नहीं वो स्पंज यूज करते। दूसरा, यस, यू कैन पुट पिलोज अंडर अंडर द पेशेंट्स बटक्स, ताकि थोड़ा सा एंटी ग्रेविटी प्रेशर आ जाए, ताकि वो जब जब ऊपर जाता है, जब उसकी बटक्स ऊपर जाएंगी तो वो थोड़ा सा ग्रेविटी की वजह से भी कॉर्ड रिलीज होके वापस जाने की वो होती है। उसके अलावा तो बाकी आप सबको पता है कि आपने फीटल हार्ट देखना है, अगर फीटल हार्ट ठीक है तो आपने फिर
अकॉर्डिंगली और फिर डायलिटेशन पे डिपेंड करता है, डायलिटेशन और फीटल हार्ट पे डिपेंड करता है कि आपने करना क्या है। अगर डायलिटेशन एडिक्वेट है तो आप विद इन 30 मिनट सस्पेक्ट कर रहे हो कि वो हो जाएगी डिलीवरी तो डिलीवर कर दो, नहीं कर हो रही डिलीवरी या फिर फीटल हार्ट ठीक नहीं है तो फिर अर्जेंट सिजेरियन सेक्शन, अगर फीटल हार्ट ठीक है तो फिर चलो थोड़ा सा और आप आगे वाला तो आप वो कर सकते हो। जी राबिया क्विकली। मैम एपीएच का क्वेश्चन कर लूं बीच में, एपीएच से रिलेटेड। हाँ हाँ तो करो ना, बिल्कुल। मैम एपीएच में थोड़ी सी मुझे ये क्लैरिटी है कि मैम एब्रप्शन में मतलब हम उसको अगर मॉडरेट एब्रप्शन में हम उसको नॉर्मल की ट्रायल देते हैं तो मैम वो मतलब कितना टाइम पीरियड हम उसको वेजाइनल के लिए देखेंगे और कब हम रिकोर्स कर जाएंगे सिजेरियन पे? देखो ये बड़ा अच्छा सवाल है। एब्रप्शन की अगर आप एल्गोरिदम्स देखो तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर तो बेबी के हार्ट बीट ठीक है तो गो फॉर सिजेरियन सेक्शन। एब्रप्शन हो गया मॉडरेट है जो भी है, आप उसका सिजेरियन सेक्शन करो और बेबी को कर दो। अगर अगर उसकी आईयूडी है तो आप उसकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाओ। आई डोंट अग्री विद इट। और आप एग्जाम में ये बात जस्टिफाई भी कर सकते हो। अगर एक पेशेंट एब्रप्शन के साथ रिसीव हुई है विद आईयूडी, इसका मतलब ये है कि उसकी मोर देन 50% एब्रप्शन है, इसीलिए तो आईयूडी हुआ है। तो मैं तो अगर ये पेशेंट एब्रप्शन विद आईयूडी आई है एंड शी इज 2 सेंटीमीटर्स, मैं तो उसी वक्त इसको थिएटर में शिफ्ट करके सिजेरियन करूंगी। बिकॉज इफ देयर इज मोर देन 50% एब्रप्शन तभी आईयूडी होता है। और अगर मोर देन 50% एब्रप्शन है तो शी कैन गो इन रीनल फेलियर, शी कैन गो इन डीआईसी, शी कैन ये हमारे हाथ से निकल सकती है पेशेंट एंड दे डू। आप नोट करो इस तरह के पेशेंट्स में एटीएन कितना कॉमन है। इस तरह के पेशेंट्स में रीनल फेलियर और फिर उसके बाद खुदा ना खास्ता अगर बिल्कुल ही हम कहेंगे बिकॉज शी इज आईयूडी एंड शी इज एब्रप्शन एंड शी इज 2 centimeters, just put on the syntocinon and let's deliver her. These patients end up in renal failure क्योंकि पहले more than 50% abruption नहीं होती है। बेशक वो नजर ना आ रही हो, वो एक कंसील्ड abruption होती है जो कि पीछे नजर नहीं आ रही होती है, पीछे ब्लड लॉस हो रहा होता है, पेशेंट एटीएन और डीआईसी में भी चला गया, तक डिलीवर होती है 2 घंटों में या सो अगर एक पेशेंट एब्रप्शन विद आईयूडी रिसीव हुई है और आईयूडी की कॉज एब्रप्शन थी तो इसका मतलब ये है कि वो मोर देन 50% एब्रप्शन है। और अगर आपने जो है वो अलाइव में भी है और आपको नजर आ रहा है कि इट्स माइल्ड उस तरह से, तो फिर भी आप विद मॉनिटरिंग आप उसका देख सकते हो कि कितने सेंटीमीटर डायलेटेड है। मॉडरेट एब्रप्शन के अंदर विद लाइव बेबी गो फॉर तो भी आप कर सकते हो बेबी के लिए। और मॉडरेट एब्रप्शन काफी होती है, मतलब अगर वो ज्यादा उसके क्लॉट निकली जा रहे हैं और अभी आप फॉरेन डिलीवरी नहीं एक्सपेक्ट करें। बट आईयूडी विद एब्रप्शन में डू थिंक ट्वाइस अगर आप उसको नॉर्मल ट्रायल दे रहे हो। ठीक है ना? मैम कोई टाइम लिमिट मेंशन करेंगे कि हम कितनी देर इसी तक, 2 तरह घंटे 1 घंटा? देर ब्लाइंड मतलब एब्रप्शन एक बिल्कुल वो ऐसी अनप्रडिक्टेबल चीज है कि इट कैन किल योर पेशेंट इन अ वे कि आपके फैक्टर्स वेस्ट हो रहे होते हैं कि अगर पेशेंट के क्लॉटिंग फैक्टर हो गया और वो डीआईसी में चली गई और ब्लड ही नहीं क्लॉट होगा तो फिर सिजेरियन भी नहीं हो सकता। एक अगर पेशेंट 10 वेट फॉर नॉर्मल डिलीवरी, ये आईयूडी इसलिए हुआ है क्योंकि उसका पीछे कंसील्ड हेमरेज इसका इतना ज्यादा है कि इसने बेबी को ही मार दिया। बेबी की आईयूडी तो इसलिए हुई है क्योंकि मोर देन 50% एब्रप्शन होगी। इमीडिएटली गो फॉर सिजेरियन सेक्शन क्योंकि वो तो फिर पीछे कंसील हेमरेज हो के तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो आपने 2 तरीके से इसको कैटेगराइज करना है कि आपको नजर कितना ब्लड आ रहा है और जो कंसील्ड है वो कितना पॉसिबिलिटी है उससे डैमेज होने का। देन ऑफ कोर्स डायलिटेशन हो सकता है वो पहले फुली डायलेटेड हो तो फिर तो डिलीवर कर दो, लेकिन अगर नहीं तो यू डोंट इवन
समटाइम्स मोर देन 1 घंटे से ज्यादा या 30 मिनट से भी ज्यादा आपके पास नहीं होते उस पेशेंट को बचाने के लिए। सो ये आपने क्विक उसका डिसीजन लेना होता है। उसके अलावा रप्चर यूट्रस के अंदर भी डिसीजन मेकिंग एट द राइट टाइम बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने डायग्नोस करी चाहिए, तो वो प्रैक्टिकली व्हेन यूर इज वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन। सो उसमें यस आपको फीटल पार्ट्स एब्डोमेन में फील होते हैं, अच्छी वाली सीटीजी चलती भी खराब सी हो जाती है। फिर आपका पेल्विक एग्जामिनेशन में जब हाँ तब when once you do the examination when you are inside the vagina then आपकी आपकी फिंगर्स खुद आपको बता देती हैं कि रप्चर यूट्रस है, क्योंकि आपको अजीब सी फाइंडिंग मिलती है वेजाइनल एग्जामिनेशन में। द सर्विक्स इज देयर बट अजीब ना फेसमेंट है ना कोई पार्ट होल्डिंग उसका कोई सामने बेबी का पार्ट है, एंड आपको उसी वक्त डायग्नोसिस बन जाता है वेरी फ्रैंकली पेल्विक एग्जामिनेशन में, क्योंकि कोई सर्वाइकल इफेसमेंट और उसको उसको जो इंट्रैप किया होता है उस तरह की कोई फाइंडिंग नहीं होती, और एम्बिगुअस सी फाइंडिंग्स होती है वेजाइनल एग्जामिनेशन में। सो उसमें इमीडिएटली ऑफ कोर्स आप लेप्रोटमी पे जाते हो, और उसमें डिपेंड करता है। अब आप वहीं से अगर तो प्रीवियस कार रप्चर है तो ठीक है, फिर तो आप उसको कर लेते हो। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, लेकिन आई डोंट नो, मैं ये बातें तो आपको प्रैक्टिकल एडवाइस ज्यादा दे रही हूँ। एग्जाम में इफ यू कैन जस्टिफाई तो आप ये बात कर सकते हो। आई वुड लाइक टू डू हिस्टेरेक्टमी इन अ पेशेंट हु इज मल्टी ग्रेविडा एंड हैज मल्टीपल सिजेरियन सेक्शन एंड हैज कम अप विद द रप्चर यूट्रस, और स्पेशली अगर वो प्रीवियस कार रप्चर भी नहीं है, अपर सेगमेंट रप्चर है, क्योंकि फिर नेक्स्ट टाइम अगर वो फिर प्रेग्नेंट होगी फिर रप्चर होता जाएगा। लेकिन इसके साथ फिर ये भी आप कर सकते हो कि अगर आप रिपेयर ही कर रहे हो, इफ नॉट द हिस्टेरेक्टमी डायरेक्टली, तो फिर आप बीटीएल करके उसे फारिग करोगे, क्योंकि आपने इस वक्त की रप्चर को रिपेयर नहीं करना, आपने अगली प्रेगनेंसी के रप्चर से भी बचाना है। क्योंकि इस दफा तो फिर भी आप तक पहुंच गई रप्चर के बाद, अगली दफा कभी रप्चर हुई तो क्या पता डॉक्टर के पास ना पहुंच सके। सो आपने नेक्स्ट रप्चर से भी उसको बचाना है। योर रिपेयर शुड बी वेरी गुड। और अगर मल्टी ग्रेविटा वगैरह में हिस्टेरेक्टमी नहीं है तो एटलीस्ट बीटीएल हो, ताकि और लेकिन अगर वो वॉल एंटीरियर पोस्टीरियर मल्टीपल जगहों से रप्चर्ड है तो यू कैन इवन आउटमेंट शी इज मल्टी ग्रेविटा, तो उसके अंदर हिस्टेरेक्टमी इज बेटर देन डूइंग द रिपेयर। सो ये चीजें आपने साथ साथ जी राबिया। रप्चर से रिलेटेड है कि अगर ठीक है। ये हाँ परफोरेशन, ये तो है ग्रेविड यूट्रस, अगर ये हमें ड्यूरिंग डीएनसी हुआ है परफोरेशन, तो लेस देन 5 mm का कैनुला होगा तो हम उसको कंजर्वेटिव देखेंगे, और मोर देन 5 mm का वो इंस्ट्रूमेंट था जिससे वो हुआ तो फिर हम उसको लेप्रोटमी पे लेके जाएंगे, ऐसा है मैम? देखो डीएनसी में नहीं, इट्स नॉट अबाउट डूइंग लेप्रोटमी और नॉट। अगर आप डीएनसी कर रहे हो फॉर एग्जांपल और खुदा ना खासा परफोरेशन हो गई है, तो जस्ट अबेंडन द प्रोसीजर एंड वेट। आप देखो वाइटली स्टेबल है, पीवी ब्लीडिंग कितनी है, ठीक है। और अगर ना साइज के ऊपर फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इट्स अबाउट द रिस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट। अगर पीवी ब्लीडिंग नहीं है, पेशेंट इज वाइटली स्टेबल, सिंटो दे के आप थोड़ी देर ऑब्जर्व करो, शिफ्ट हर बैक टू द ऑपरेशन टू द पोस्ट ऑफ आईसीयू, उसको नॉर्मल डिस्चार्ज से थोड़ा देर से डिस्चार्ज करो। अगर फॉर एग्जाम्पल उसमें ब्लीडिंग कंटिन्यू होती है, रप्चर हो गया और ब्लीडिंग हुई जा रही है, तो आई वुड लाइक टू पुट इन अ लेप्रोस्कोप टू सी के अंदर क्या कंडीशन है, अंदर हुआ क्या, तो फिर आप अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हो। जी डॉक्टर मत्तर। डॉक्टर रूबा, मेरा क्वेश्चन ये है कि इफ वी encounter uterine perforation during D&E, isn't it mandatory to explore the gut? सॉरी आपने क्या क्वेश्चन किया है? क्वेश्चन ये है कि अगर यूट्राइन परफोरेशन हुई है ड्यूरिंग डीएनई, तो ये मैंडेटरी है ना कि हम गट एक्सप्लोर करें, देखें कि नहीं, देखो बात ये है कि वही बात है, रेयर चीजें एक होता है परफोरेशन आपके हॉस्पिटल में हुई है, आपसे हुई है, एक होता है परफोरेशन कहीं से होके आई है, डिस्टेंडेड एब्डोमेन और वॉमिटिंग और उसके साथ, राइट। अगर आपसे डीएनसी में परफोरेशन हो गई है तो ऑब्वियसली आपको वहीं पे पता लग जाएगा ना, आप वहीं पे यू विल स्टॉप इमीडिएटली, राइट। यू कैन, अगर आपको ज्यादा आपको लगता है कि आपने देर से डायग्नोज किया कि परफोरेशन हुई एंड यू वर डूइंग द प्रोसीजर एंड यू केप्ट ऑन डूइंग इट, तो ठीक है, फिर आप टेलीस्कोप डाल के देख लो, एक लेप्रोस्कोप डाल के देख लो के अंदर क्या था। वरना अदरवाइज इतना परफोरेशन में इतना ये तो नहीं होता कि अगर खुदा ना खास्ता डीएनसी में परफोरेशन हो गया तो आप ओपन करके बैठ जाओ घट देखने के लिए। यू सी द रिस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट, ओके ओके। एक्सेप्ट कि खुदा ना खास्ता कोई मोमेंटम ही आप साथ ले आए हो बाहर।
आप कर रहे थे डीएनसी और फिर आप परफोरेशन से मेंटम आ गया है बाहर वजाइना में, वो तो फिर डेफिनेटली चाहे आप टेलीस्कोप डाल के देखो या ओपन करके देखो, फिर तो देखना ही है, क्योंकि मेंटम या कुछ गट को तो नहीं करने की जरूरत होती एक्सप्लोर। इट डिपेंड्स ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट। ठीक है ना? ओके, थैंक यू। वेलकम। ठीक है, सो आई थिंक हमने कुछ मैंने तो वो एल्गोरिथम्स या रिससिटेशन एबीसी वाली बातें हर में इसलिए नहीं की क्योंकि आई वांटेड कि थोड़ा सा क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स रहे आपको, तो उससे बेहतर रहेगा, तो इसलिए मैंने क्विकली दो चार बातें। आई थिंक बाकी तो बहुत आसान सिनेरियोज है, कोई होए तो नेक्स्ट टाइम शुरू में थोड़ी सी उसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, सो कोई और क्वेश्चन तो नहीं ना? क्या है तो बता दे। थैंक यू ठीक है, तो सो इस मच मैम, यू आपने वेलकम। कंसेप्ट जो है ना क्लियर किया। यू थैंक यू हैव टू सो हैव मच। कॉन्सेप्ट, आई एम टेलिंग यस यू, अगर मैम। कॉन्सेप्ट नहीं होंगे एग्जामिनर को नजर आ जाने, वो यस मैम। आपको पास नहीं, आप पास नहीं करेंगे। आईएमएम में एटलीस्ट पास हो जाते थे अगर आपने रट्टा मारा हुआ एल्गोरिथम्स का। अब तो हर एक ने रट्टा मारा हुआ है ना, बिकॉज आप सारे आईएमएम क्लियर करके आए हुए, एंड यू आर प्रैक्टिसिंग इट इन योर लेबर वार्ड्स। आप जब ड्यूटी कर रहे होते हो या एल्गोरिथम्स आप अप्लाई कर रहे होते हो, बट योर कॉन्सेप्ट, आप कॉन्सेप्ट नजर आने चाहिए व्हेन यू आर टेलिंग देम द एल्गोरिथम्स। ठीक है, सो इस तरीके से अब तैयारी करनी है।